Okay, once we know about light, now let us try to understand a phenomena known as refraction of light. Here what happens, you know another phenomena, that is reflection of light. There are also various phenomena, higher phenomena like interference of light, like diffraction of light, black body radiation, okay. These phenomena could not be explained with ray nature, hence to explain this phenomena we require wave nature of light. But refraction of light and reflection of light both can be explained with ray nature and also can be explained with wave nature. Reflection of light we already have learned. Reflection of light we already have learned. In the previous videos that I have shared, there was reflection of light, there was numerical of reflection of light, everything was there. Ray diagram, everything was there. Now talking about refraction of light, or what basically happens, suppose there is a light source. Now, suppose there is a light source. From this light source, wave fronts are coming out. Now huge, if you take only one single portion of a huge wave front, it will look like a straight line, is it or not? Huh? Now suppose this light wave front is supposed to hit the interface of two media. Suppose air and water. And the separating line of air and water is known as the interface. Is known as what? Interface. Now suppose the light ray has come and hit the interface. This light wave has come and hit the interface. Now let me tell you, before going into much further details, that some media are optically rarer and some media are optically denser. Now this optically rarer and optically denser means when light, the electromagnetic wave, is supposed to pass through a particular transparent medium, be it air, water, glass, diamond or whatever. Okay, when it is supposed to pass, there is an optical permittivity. Based on it, some media or transparent media become optically rarer and some transparent media become optically denser. In optically rarer media, remember, speed of light is comparatively more, and in optically denser medium, speed of light is comparatively more. Remember this. In some media, speed of light is comparatively comparatively लेस. सब गधे बैठे हैं यहाँ पे, दिख रहा है गलत लिख रहा हूँ फिर भी बोलते नहीं है. दोनों में मोर होगा क्या? So optically rarer medium में speed of light is comparatively more, and in optically denser medium speed of light is comparatively less. ये डिपेंड करता है कि देख, ये बहुत हायर क्लास का चीज है, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? ऑप्टिकल परमिटिविटी की वजह से ये हायर क्लास का चीज है थोड़ा, ठीक है?
कि एक पर्टिकुलर मीडियम का, चाहे वो ग्लास हो, एयर हो, डायमंड हो, वाटर हो, केरोसिन हो, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट पास होता है, जिसमें से तू देख सकता है, ठीक है, उसमें से जब लाइट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which actually does not vibrate the particles of the medium, which itself vibrates the magnetic and electric field lines it already possesses, ठीक है, जब वो एक पर्टिकुलर वेव का भी तो एक स्पीड होता है ना, जब वो वेव एक पर्टिकुलर स्पीड में जा रहा होता है, ठीक है, तो वो जिस मीडियम को एनकाउंटर करके जा रहा है उसके हिसाब से उसका स्पीड घट बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? उसका स्पीड क्या हो रहा होता है, उसके हिसाब से बढ़ जाता है या घट जाता है। अगर रेयर मीडियम है तो ज्यादा रहेगा, अगर डेंसर मीडियम है तो घट जाएगा। अब सर कैसे समझ में आएगा कौन ऑप्टिकली रेयर है और कौन ऑप्टिकली डेंसर है? ये थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ता है। जैसे एयर ऑप्टिकली रेयर है इन कंपैरिजन टू वाटर, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर। आया बात समझ में? अब जब ये वेव फ्रंट आके ऐसे ऑब्लिकली गिरा तो क्या होगा? देख, स्पीड ऑफ लाइट कैसे समझ में आएगा तेरे को? ये एक वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट से तीसरा, चौथा वेव फ्रंट, पांचवा वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट पैदा होता गया। जितना जल्दी जल्दी वेव फ्रंट पैदा होता गया, वेव फ्रंट मतलब ट्रेवल कर रहा है ना, वेव ट्रेवल कर रहा है ऐसे, उसी के हिसाब से स्पीड हो रहा है। लाइट का स्पीड एक्चुअली c is equals to wavelength lambda into frequency of the light nu, ये याद रख। स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट न्यू। ये ट्रांसवर्स वेव के लिए बहुत सीधा हिसाब है, बताऊं कैसे? सोच कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट और रॉन्ग? अच्छा, वेवलेंथ का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव व्हेन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट। ये वेवलेंथ होता है, ये जानना पड़ेगा। अब ये भी नहीं पता तो ये मैं इसके अंदर नहीं समझा सकता। मतलब ये इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। अगर ग्राफ में ड्रॉ करेगा, मीन से एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम से मीन, एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट होता है तब जहां तक वेव पहुंचा है उसको कहते हैं वेवलेंथ। जैसे कि वो 50 लड़कों का एग्जांपल दिया था ना, सो जंप मारा तो पहला लड़का का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में वापस एक वाइब्रेशन कंप्लीट या एक ऑसिलेशन कंप्लीट। लेकिन तब तक दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का जंप करना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। मतलब वेट करेगा, ओ तू एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले, फिर दूसरा पार्टिकल स्टार्ट करेगा, फिर दूसरा पार्टिकल स्टार्ट करेगा, फिर ऐसा होगा। राइट और रॉन्ग? पहला वाला जैसे ही स्टार्ट करेगा दूसरा वाला भी उसके साथ साथ ही स्टार्ट कर देगा लगभग। तो सोच ले, ऐसा सोच, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पहला वाला जब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तब तक दूसरा वाला स्टार्ट कर चुका है, तीसरा, मतलब जो एनर्जी है वो बहुत दूर तक फैल चुका है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होते होते वेव जितना तक ट्रेवल कर चुका है उसको कहते हैं क्या? वेवलेंथ। आया समझ में बात? ठीक है, तो मैं ऐसा बता सकता हूं कि लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, so that is equals to n into wavelength, मतलब n टाइम्स वेवलेंथ। 100 वेवलेंथ या 100 वेवलेंथ तक ट्रेवल किया है, ऐसा सोच सकता हूं। राइट और रॉन्ग? एक वेवफ्रंट के बीच में से एक वेवफ्रंट, ये एक वेवलेंथ सोच सकता है, एक वेवफ्रंट से दूसरा वेवफ्रंट, वेवलेंथ ऐसे करके बहुत सारे वेवलेंथ तक एक से एक जा रहा है। ये सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक वेवलेंथ हो, जस्ट यहाँ पे समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। ऐसे वेवलेंथ जा रहा है, ये सुनो, इज दिस क्लियर टू यू? तो n टाइम्स ऑफ लैम्डा इज द डिस्टेंस। अब मेरी एक बात बता, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। यस और नो? एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है, तो एक ऑसिलेशन करने में जितना डिस्टेंस गया वो वेवलेंथ, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड। तो अगर n वेवलेंथ गया तो n2 टाइम पीरियड भी लगा होगा। यस और नो? n कैंसिल कर देता हूं तो क्या आ रहा है? लैम्डा बाय टाइम पीरियड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू 1 बाय टाइम पीरियड, बट 1 बाय टाइम पीरियड इज व्हाट? आया समझ में? फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, इसीलिए वो टाइम पीरियड का इनवर्स है। टाइम पीरियड मतलब कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा, और फ्रीक्वेंसी क्या है
कि 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, उल्टा है उसका। तो यानी 1/time period is always equals to frequency. So lambda into frequency is equals to speed. So speed of light is equals to lambda into frequency. ये ट्रांसवर्स वेव के लिए बहुत ही ट्रूथ है। ट्रांसवर्स वेव जो कि मतलब पार्टिकल्स का हेल्प नहीं लेके जा रहा है, तो और कोई फैक्टर्स उसके स्पीड को इफेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसका स्पीड ऐसा होगा। ये सर नो, लेकिन फिर भी इतना समझ में आया, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू frequency of light. Speed of light is equals to wavelength of light into frequency of light. आया समझ में बात? नहीं आया? पूरा अच्छे से समझ में आया? श्योर? अब लाइट आके यहाँ पे गिरा, लाइट का वेवफ्रंट आके यहाँ पे गिरा। नेक्स्ट जब ये अभी दूसरे मीडियम में देख, ये पार्ट ऐसे आके बैठेगा, ऐसे आके बैठेगा, फिर अंदर जाने की कोशिश करेगा घंटा, ये पार्ट ऑलरेडी दूसरे मीडियम में घुस जाएगा और ये पार्ट तभी भी एयर में ही जाना चाहेगा। अब मेरे को एक बात बता, वाटर में लाइट का स्पीड घटेगा क्योंकि इन डेंसर मीडियम लाइट का स्पीड घट जाता है ऑप्टिकल परमिटिविटी की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लाइट का स्पीड स्लो हो गया, तो मेरे को एक बात बता, सोच कि ये यहां तक जब तक यहां पहुंचा, ठीक है, अगर स्लो है बेचारा तो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएगा, सोच के इतना ही पहुंच पाया यहां तक, क्योंकि यहां पे स्पीड ज्यादा है ना, स्पीड ज्यादा है, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, ये कर पाएगा उतना डिस्टेंस, ये पोर्शन नहीं ना कर पाएगा, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट विल बी लाइक दिस। यस, अब मैंने तेरे लोगों को क्या सिखाया था कि लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अब एक परपेंडिकुलर लाइट रे फेंका और यहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फेंक, सॉरी यहां पे एक सीधा लाइन ड्रॉ करता हूं समझने के लिए, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो यहां पे परपेंडिकुलर फेंका कि नहीं फेंका? फेंका, ये लाइट रे है। अब यहां से अगर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कैसे करना है? ऐसे बिना मेरा उपाय नहीं है ड्रॉ करना। ये सर नो, अब मैं सब मिटा देता हूं। Do you see one thing? When light is traveling from one medium to another medium, the light rays are bending. Yes or no? This straight line is known as the normal. Is known as the normal, which is perpendicular to the interface. This is known as the point of incidence. This is known as what? Point of incidence. This is known as incident ray. Right or wrong? And this is known as reflected ray. ठीक है, तो phenomena क्या समझ में आया? When light travels from one particular medium to another particular medium, having two different optical densities, then light ray bends. और ये भी समझ में आया कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। So if it goes from rarer medium to denser medium, light ray bends towards the कौनटा? ओ हाँ, रिफ्रैक्टेड रे होगा, सॉरी, थैंक यू। अरे तुम ही लोग तो मेरे को पढ़ाते हो, मैं कहा तुम लोगों को जैसा फिजिक्स पता है मेरे को, थोड़ी ना पता। नेक्स्ट टाइम मेरे से फीस ले लेना, घंटा दूंगा। अच्छा, समझ में आ गया? आंसर सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे। तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अगर सर उल्टा हुआ तो क्या होगा? तो भी देखते हैं भाई क्या होगा, चलो देखते हैं। कपड़ा ये सब मिटा देता हूं, ठीक है? ये छोटे से जगह में समझाऊंगा, चलेगा? चलेगा? अच्छा, सोच कि ये इंटरफेस है और देख, तू ना नॉर्मल कहीं भी ड्रॉ कर सकता था, यहां पे भी एक नॉर्मल हो सकता था, यहां पे भी एक नॉर्मल हो सकता था। इसी नॉर्मल को कंसीडर इसलिए करना है कि नॉर्मल को दूसरे जगह में ड्रॉ करके क्या फायदा? जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहीं पे नॉर्मल ड्रॉ करो,
तभी ना जाके मेरे को पता चलेगा, रेफरेंस मिलेगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। लाइट रे तो हर जगह गिर रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है, और हर जगह सेम बिहेव करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मली बेंड करेगा, क्योंकि एयर से वाटर हर जगह टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड करेगा। ये समझो। अच्छा, अब दूसरा चीज, और क्यों कर रहा है समझ में आया? क्यों बेंड कर रहा है समझ में आया? नहीं समझ में आया क्यों बेंड कर रहा है? और एक बार बता रहा हूं, देख ले, अब उल्टा करके बताऊंगा, सोच ले। ये तेरा एक वेव फ्रंट आके गिरा, सोच ये ग्लास है और ये एयर है। ग्लास इज डेंसर, एयर इज रेयर। अब मेरे को एक बात बता, ऐसा गया, ठीक है? अब मेरे को एक बात बता, अब जब लाइट का वेव फ्रंट दूसरे मीडियम में जाएगा तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जितने टाइम में ये यहां तक पहुंचेगा उतने टाइम में ये यहां तक पहुंच चुका होगा, बहुत दूर पहुंच चुका होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। वहां पे उल्टा हो रहा था, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट ये होना चाहिए। ये समझो। अब लाइट रे को चेकआउट करते हैं, परपेंडिकुलर होगा लाइट रे, ये समझो, ठीक है? और एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, ये समझो। और अभी क्या होगा, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट से, तो ऐसे ही करना पड़ेगा मेरे को, ये समझो। अब मैं सब मिटा दूं, तो क्या हो रहा है? लाइट रे इज बेंडिंग, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, point of incidence normal, right or wrong? And light ray is bending away from the normal when it is traveling from denser to rarer medium. Is this clear to you? आया समझ में? एक मजे की चीज देखेगा, वो जाके उधर बैठे थे, तो इस बंदे को जा उधर जगह बैठ, तो उसको छोड़, जा बैठ जा, लड़कियों के सामने बैठ जा आराम से, पीछे पीछे। तू हिला देगा इसको, हाँ पीछे जा, अनुष्का के कोट में चला जा। हाँ अरे ऐसे घूम जा, ऐसे घूम जा। कैमरा वाइड मोड है क्या ना, দেখা যাচ্ছে না? क्लियर हो गया ना बात? मजा आया कि नहीं आया? ओके।